हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूनम जादव। इस प्रेजेंटेशन में हम चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, रास्टर स्कैन ग्राफिक्स। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज बेसिक कंसेप्ट इन ड्राइंग लाइन, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, दैट इज DDA एल्गोरिदम एंड ब्रेसेनहेम एल्गोरिदम। तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम एक ही एल्गोरिदम देखने वाले हैं लाइन ड्राइंग का, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। इसमें हम पहले देखेंगे वर्किंग ऑफ द DDA, उसके बाद एल्गोरिदम देखेंगे, उसके बाद DDA के ऊपर एक सम सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद एक प्रोग्राम देखेंगे DDA का, जो होगा आपका C प्रोग्रामिंग। लेट्स स्टार्ट विद द लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। The line is a collection of points along a straight path. Typically, the line is described by its two endpoints. It is a basic element in a graphics. To draw a line, you need 2 points between which you can draw a line. So, this line drawing algorithm, also known as a line generation or scan conversion of a line. It is a process of turning on or off the pixel along the line path. It uses incremental line drawing algorithm. In this image, we can see the two endpoints of a line segment are specified at a position of x1 and a y1 and x2 and a y2. Means point P1 is a starting point and point P2 is a ending point. So between these 2 points we have to find or calculate the intermediate point, so we easily can draw the line. So the equation, or you can say the line representation, or compute a line, we use this equation. Slope intercept formula, y is equal to mx plus c, where m is a slope and c it is a y intercept, and x and y is the point of a line. It is evident from this image that the slope of the line is m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 equal to delta y and delta x. Okay, so in this incremental approach, the line starts from first endpoint and some fixed increment value is added to the current pixel to get coordinate of the next pixel. The process is repeated until the line interpolates second endpoint. So for line drawing algorithm, we have 3 algorithms: DDA line drawing algorithm, Bresenham line drawing algorithm and midpoint line algorithm. In our syllabus, we have only 2 algorithms, DDA line algorithm and Bresenham line algorithm. So start with the digital differential analyzer, that is DDA. So digital differential analyzer is simple incremental scan conversion method in computer graphics to draw a line. It plots the point from the source to the destination
incrementing the source coordinates. In this method, the calculation is performed at each step but by using the result of the previous step. इसका ये मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे x और y कोऑर्डिनेट है, ओके, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है दैट इज P1 और दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे है दैट इज P2, ओके. तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया, और यू कैन से द सोर्स पॉइंट एंड अ डेस्टिनेशन पॉइंट, ओके. तो लाइन बनाने के लिए हमें ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है, ओके, इनके पॉइंट्स जो है, ओके, हमें ये ढूंढने हैं. तो ये कैसे ढूंढे जाते हैं? बाय इंक्रीमेंटिंग, ओके, by incrementing a source coordinate by using previous value. Means what? For example, अगर ये हमारा x है, ओके, x1 you can say, तो अगर ये वैल्यू हम लोगों को चाहिए तो we can add it +1, that is 1 से हम उसे क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं. तो हमें ये वाला पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, नाउ इफ आई वांट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मैं अभी x की वैल्यू बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स y की भी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? हम लोगों को इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी. तो x का ही एग्जांपल ले रही हूँ. अगर हमें ये पॉइंट चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो आपका प्रीवियस मीन्स इसका जो आंसर रहेगा, ओके, प्लस उसमें हम लोग क्या कर देंगे? 1 कर देंगे. तो हमें ये भी वैल्यू क्या होगा? मिल जाएगा. ऐसे करते करते पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट कैलकुलेट करते करते हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे? डेस्टिनेशन के यहाँ पे आ जाएंगे. और फिर बाद में हमें यहाँ पे क्या करनी है? लाइन ड्रॉ करनी है. ये DDA का क्या है? फंडा है. ओके. Next one, the DDA is a hardware or software used for linear interpolation of variable over an internal between start and a end point. Next, a DDA are used for rasterization of line, triangle and polygon. तो DDA यूज करके आप लाइन, ट्रायंगल, पॉलीगॉन क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं. एंड लास्ट पॉइंट, DDA एल्गोरिथम जनरेट अ लाइन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इज रेफर एज DDA बिकॉज दिस मेथड इज वेरी सिमिलर टू द न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो DDA एल्गोरिथम जनरेट करता है लाइन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, सो उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल एनालाइजर. ये मेथड सेम एज कैसी है? न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह है. ओके, नाउ वी सी द DDA algorithm. The first step is read the end points of a line P1 x1, y1 and Q x2, y2. So हमें दो एंडिंग पॉइंट मिलने वाले हैं, P1 एंड Q. ये दोनों भी जो पॉइंट्स है वो गिवन रहेंगे और दोनों भी पॉइंट्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? इक्वल नहीं होती है. अगर इक्वल हुई तो वहीं पे प्रोग्राम हम लोगों का क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी पॉइंट सेम हो जाएंगे. नाउ स्टेप नंबर 2 इज डेल्टा x इज इक्वल टू ABS x2 माइनस x1 एंड डेल्टा y इज इक्वल टू ABS x2 minus y2 minus y1. okay, so ABS means absolute value or you can say the mod value. okay, तो आपको यहाँ पे डेल्टा x एंड डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी. उसके बाद स्टेप नंबर 3 इज अ इफ कंडीशन और इफ स्टेटमेंट. इफ delta x greater than equal to delta y, then
condition is true and length is equal to delta x will be executed. If condition is false, means y, delta y is with a big value, then the length is equal to delta y will be executed. ओके इसका मतलब क्या है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है, कब ट्रू होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, बिग होगी और y की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी. तो आपकी ये जो लाइन है, स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगी. तो लेंथ आपको क्या मिलेगी, जो भी डेल्टा x की वैल्यू होगी. अगर कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स x की वैल्यू क्या होती है आपकी, स्मॉल, एंड y की वैल्यू क्या है, बिग वन, देन एल्स वाला पार्ट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा y होगा. और यहाँ पे आपका इफ स्टेटमेंट एंड है. उसके बाद स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 क्या है, यू गेट अ न्यू डेल्टा वैल्यू दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, जो आपको स्टेप नंबर 1 में ही मिल जाएगा. एंड लेंथ इज स्टेप नंबर 3 से मिलने वाला है. सेम द स्टेप नंबर 5, delta y is equal to x2 minus x1 divided by the length. Now step number 6 is x2 is equal to x1 plus 0.5 into sine delta x and y2 is equal to x1 plus 0.5 into sine delta y. So this sine function makes the algorithm work in all quadrant, and this 0.5 factor make it possible to round the value in integer function. Now the step number 7 is I is equal to 1 and while loop will be executed. So in a while loop, if I is 1, the condition is I less than equal to length. If condition is true, then ये जो 4 स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया. तो पहली स्टेटमेंट क्या है, प्लॉट. क्या प्लॉट करेंगे, तो इंटीजर x जो हमें स्टेप नंबर 6 में वैल्यू मिली है x की और y की वैल्यू जो मिली है वो हम ग्राफ पे क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे. देन x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x. तो x की वैल्यू जो है सेम स्टेप आपको x से 6 से मिलने वाली है और डेल्टा x आपको 4 से मिलने वाली है वैल्यू. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है. ओके सेम यहाँ पे y का भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो जाएगा. एंड उसके बाद i का इंक्रीमेंट होने वाला है, दैट इज i इज इक्वल टू i प्लस 1. जब तक आपका while लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, तब तक हम लोग ये 4 स्टेटमेंट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. जब while कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स हो जाएंगी, तब आपका एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. नाउ वी सी द वन एग्जांपल ऑफ DDA. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम P is 0 0 to Q is 4,6 using DDA एल्गोरिदम. तो एक साइड में यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम रखा है और एक साइड में मैंने इस प्रॉब्लम क्या किया है, सॉल्व किया है. सो यू नो दैट कि हम सेम एज एल्गोरिथम के तरह ही आपका प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं. ओके सो स्टेप नंबर 1 में आपको P1 जो है वो 0 0 है, उसका मतलब x1 की वैल्यू होगी 0 एंड y1 की वैल्यू क्या होगी, 0. Q यहाँ पे 4 एंड 6 है, मीन्स x2 की वैल्यू होगी 4 एंड y2 की वैल्यू क्या होगी, 6. स्टेप नंबर 2 आपको डेल्टा x एंड डेल्टा y निकालना है. उसके लिए आपकी x2 की वैल्यू 4 है एंड x1 की वैल्यू क्या है, 0. तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, डेल्टा x की 4 एंड डेल्टा y की वैल्यू क्या मिलेगी, y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 0 इज आंसर इज 6. तो डेल्टा y आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा. नाउ स्टेप नंबर 3 हम लोग क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं. तो यहाँ पे आपका डेल्टा x की वैल्यू है एंड यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू है. डेल्टा x इज अ 4 एंड डेल्टा y इज अ 6. तो कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि y क्या है आपका, बड़ा है. तो यहाँ पे आपका एल्स वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. सो लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, जो क्या है, डेल्टा y.
नाउ स्टेप नंबर 4 जो है आपको न्यू डेल्टा एक्स मिलने वाला है बाय यूजिंग द फॉर्मूला x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय द लेंथ. तो माइनस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6. सो आंसर इज 4 डिवाइडेड बाय 6. तो आप ऐसे ही रख सकते हो और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. स्टेप नंबर 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू 6 minus 0 divided by 6. So answer is 1. Okay, same as algorithm में दिया है वैसे ही हमने यहाँ पे किया. Next one is step number 6. So x is equal to 0. Why 0? Because x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 प्लस 0.5 into 4 divided by 6 that is डेल्टा x की वैल्यू और आपका x का आंसर क्या आ जाता है 0.5. यहाँ पे y है y is equal to 0. The formula is y1 plus 0.5 into sin delta y. तो y1 की वैल्यू क्या है 0. ओके प्लस 0.5 into डेल्टा y की वैल्यू क्या है 1. सो कैलकुलेशन किया तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5. तो x की वैल्यू 0.5 एंड y की वैल्यू ऑल्सो तो 0.5. Now step number 7. So already declare I is equal to 1. Okay. Now while loop हम क्या करते हैं execute करते हैं. So 1 less than equal to 6. The condition is true. If condition is true, then plot the x की value and y की value जो हमें step number 6 से मिल रही है. ओके तो ये हम पेपर पे क्या कर देंगे प्लॉट कर देंगे. Then the x is equal to 0.5 plus delta x that is 4 divided by 6. तो आंसर क्या आ जाएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद 1.167. ओके आफ्टर दैट y का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है वैल्यू हम पुट अप करते हैं 0.5 प्लस 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5. ओके अभी हम लोगों को यहाँ पे x एंड y की क्या मिली है न्यू वैल्यू मिली है प्रीवियस वैल्यू से. ओके उसके बाद i क्या हो जाएगा हम लोगों का इंक्रीमेंट हो जाएगा और आंसर क्या i क्या किस इंक्रीमेंट होने के बाद i कितना होगा 2 होगा. तो फिर से हम लोग यहाँ पे while लूप पे आ जाएंगे. नाउ योर i इज 2 और यहाँ पे फिर से क्या आएगा i 2 होगा और कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी. फिर से हम लोगों को ये 4 स्टेप क्या करने पड़ेंगे एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे. जब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7 तब जाके हम लोगों की कंडीशन फॉल्स होंगी और आपका एल्गोरिदम क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा और हमें एक लाइन ड्रॉ करके मिलेगी. तो ये जो वाइल लूप है मैंने टेबल में किया है उसे हम देखते हैं तो एग्जीक्यूट करना है. सो फर्स्ट इटरेशन मीन्स आपका वाइल लूप है जहाँ पे कंडीशन है i इज लेस देन इक्वल टू 6. उसके बाद ये जो है वो फॉर्मूला लिखा है न्यू x का x प्लस डेल्टा x एंड y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y और यहाँ पे पॉइंट्स इंटीजर में क्या किए हैं प्लॉट करके लिखे हैं. सो फर्स्ट हमने इटरेशन देखा है कि i इज इक्वल टू 1 ओके एंड x इक्वल टू 0.5 प्लस 4 by 6 इज इक्वल टू आंसर आता है 1.167. सेम लाइक y का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने वैल्यू डाली है और आंसर क्या आएगा 1.5. तो हमें प्लॉट जो करनी है x की वैल्यू फर्स्ट वो आएगी 1 क्योंकि इंटीजर में लिखना है एंड y की वैल्यू क्या है 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लॉट करना है 1,1. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज i इज इक्वल टू 2 क्योंकि यहाँ पे i क्या होगा आपका इंक्रीमेंट होने वाला है. तो x इज इक्वल टू 1.167 जो आपकी न्यू वैल्यू आई है x की और यू कैन से द प्रीवियस वाली वैल्यू प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 तो आंसर आएगा 1.833. सेम लाइक y इज इक्वल टू 1.5 दैट इज प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू ऑफ y प्लस 1 दैट इज 2.5. So you have to plot a integer value 1,2. So now फिर से आपका i इंक्रीमेंट होगा 3. x की वैल्यू x is equal to 1.833
833 plus 4 divided by 6, and answer will be 2.5. Same like a y is equal to previous value is 2.5 plus a 1 is equal to 3.5. The integer value is plot 2,3. Now फिर से आपका i क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा. तो x का फॉर्मूला जो है, प्रीवियस वैल्यू क्या है आपकी 2.5 और न्यू वैल्यू प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3.167 आंसर आ जाएगा. और यहाँ पे y इज इक्वल टू 3.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 4.5. तो y का आंसर क्या है 4.5. तो x का यहाँ पे वैल्यू 3.167, तो हम प्लॉट करके लिखेंगे इंटीजर वैल्यू 3 और यहाँ पे y की वैल्यू इज 4.5, तो हम लिखेंगे 4. सेम फिर से हम लोगों का i जो है इंक्रीमेंट होगा. x इज इक्वल टू 3.167 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3.833. x की वैल्यू क्या है 3.833. y is equal to 4.5 that is previous value plus 1 that is 5.5. और प्लॉट करेंगे इंटीजर वैल्यू that is 3 और यहाँ पे 5. ओके, नाउ i is equal to 6 that is x का वैल्यू is 3.833 जो प्रीवियस वैल्यू है x की और न्यू वैल्यू है वो, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 4.5. एंड y की वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू 5.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6.5. और प्लॉट करेंगे इंटीजर वैल्यू 4 एंड 6. ओके, सो फिर से इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7. अगर 7 आता है तो आपकी वाइल कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. तो यहीं पे प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. और प्लॉट करने के लिए आपको ये पॉइंट जो है दिखाई दे रहे हैं x एंड y के, वो मिल जाएंगे. ओके, सो देखते हैं हम कि कैसे प्लॉट किए. जो पॉइंट हमें वहाँ पे मिले थे, ओके, वो पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक 1 1 1 2. ओके, और इसमें से आपको जो पॉइंट मिले हैं एक लाइन आपको बनानी है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ DDA algorithm. DDA is a simple algorithm. It is easy to implement and it avoid using the multiplication operation, which costly in term of the time complexity. तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, प्लस माइनस यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन एक बार ही यूज़ किया है. ओके, तो वो अवॉइड क्या करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड कर देता है. और डिसएडवांटेज क्या है कि एक्स्ट्रा ओवरहेड ऑफ यूजिंग अ राउंड ऑफ फंक्शन. ओके, तो हमने राउंड ऑफ फंक्शन यूज़ किया है तो वो एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाता है. यूजिंग अ राउंड ऑफ फंक्शन इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम. ओके, तो राउंड ऑफ की वजह से यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. उसके बाद द रिजल्ट लाइन्स आर नॉट स्मूथ बिकॉज राउंड ऑफ फंक्शन. अगर आपने ग्राफ में देखा ही कि लाइन जो है वो स्मूथ नहीं है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट के वजह से, राउंड ऑफ फंक्शन के वजह से. एंड लास्ट वन इज द पॉइंट जनरेटेड बाय दिस एल्गोरिदम आर नॉट एक्यूरेट. ओके, नेक्स्ट वन सी द C प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम. तो सेम जैसे एल्गोरिदम में हम लोगों ने लिखा है वैसे ही, ओके, यहाँ पे लाइन जो है एल्गोरिदम की लाइंस वही लिखी हुई है. जो एक्स्ट्रा है मैं आप लोगों को वो समझाती हूँ. पहले आएगा #stdio.h हेडर फाइल. कौन ये हेडर फाइल, getch के लिए graphics.h क्योंकि हम ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिख रहे हैं, एंड maths.h क्योंकि कहीं पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मैथ्स यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल साइन यूज़ करने वाले हैं फंक्शन, इसलिए. इम्प्लीमेंट ऑफ द साइन फंक्शन, उसके लिए ये कोडिंग है. इन साइन ब्रैकेट में है फ्लोट वैल. इफ वैल इज लेस देन 0 देन रिटर्न -1 एल्स रिटर्न 1. ओके, एंड मेन फंक्शन इंट किया है तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लास्ट में रिटर्न होगी.
सो मेन फंक्शन इंट में ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं फ्लोट x कॉमा y कॉमा x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 कॉमा dx कॉमा dy एंड लेंथ। तो डेल्टा x के लिए dx लिखा है, डेल्टा y के लिए क्या लिखा है, dy लिखा है। इंट I GD एंड GM, यहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर और मोड हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। क्लियर स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए फंक्शन लिखा है। उसके बाद डिटेक्ट ग्राफ, ये क्या करता है, ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक मोड को क्या करता है, डिक्लेयर कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। इनिट ग्राफ क्या लिखा है, GD, एड्रेस ऑफ GD एंड एड्रेस ऑफ GM, और ये क्या है आपका पाथ है C का। ओके, तो अगर आपका टर्बो C3 है तो आप यहाँ पे टर्बो C3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट करना है आपको, एंटर द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। ओके, ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट लाइन के पॉइंट है और उसे क्या करना है, स्कैनफ करना है। स्कैनफ से क्या होगा, आपके आउटपुट स्क्रीन पे आप इनपुट दे सकते हो, दैट इज %f कॉमा एड्रेस ऑफ x1 कॉमा एड्रेस ऑफ y2। सेम लाइक हम लोग क्या करने वाले, एंटर वैल्यू करने वाले हैं x2 कॉमा y2, और स्कैनफ भी करेंगे %f। ओके, क्योंकि हम फ्लोट में भी वैल्यू वहाँ पे दे सकते हैं। ओके, इंटीजर वैल्यू दी तो भी चलेगा, इंटीजर वैल्यू दी तो वो फ्लोट में प्रॉपरली कन्वर्ट कर देता है, एड्रेस ऑफ x2 एंड एड्रेस ऑफ y2। ओके, नाउ सेम एल्गोरिथम का स्टेप है, dx इज इक्वल टू abs एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 एंड dy इज इक्वल टू abs y2 माइनस y1। अब यहाँ पे पूरा एल्गोरिथम वैसे की वैसे ही लिखा है। इफ कंडीशन है, इफ dx greater than equal to dy, if condition is true then length is equal to dx, so dx will be output. If condition is false then else wala part will be executed, so dy will be length. Then dx is equal to x2 minus x1 divided by length, so you get a new value for the dx, and dy is equal to dy y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय लेंथ, सो dy की आपको यहाँ पे न्यू वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू x प्लस 0.5 इंटू साइन dx, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी राउंड ऑफ करके, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस 0.5 इंटू साइन dy। ओके, तो यहाँ पे आपको x एंड y की वैल्यूज मिलने वाली है। नाउ यू यूज द प्लॉट x and y coordinate, so use a put pixel function, so x, y and a 15 is for the color, I is equal to 1 because we now starting with the while loop, so I is greater than equal to length। if while condition is true, अगर लेंथ आपकी क्या है I से बड़ी है तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और ये वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स एंड y इज इक्वल टू वाई प्लस डी एक्स, और वो दोनों भी x एंड y हमें यहाँ पे क्या करनी है, प्लॉट करनी है, एंड वैल्यू को क्या करना है, i की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ओके, और ये डिले फंक्शन यूज किया है टू ऑब्जर्व अ लाइन ड्रॉइंग, मीन्स डिले से क्या होगा, एक एक पॉइंट आपका डिले 100 लेके क्या होगा, डिस्प्ले होने वाला है। ओके, वेन एवर योर वाइल कंडीशन विल बी फॉल्स, ओके, तो आप लूप के क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको गेट ch फंक्शन लिखना है, उसके वजह से आपकी आउटपुट विंडो होल्ड होके रहेगी, और उसके लिए हमने हेडर फाइल लिखी है conio.h। क्लोज ग्राफ किया है क्योंकि हमने हेडर फाइल लिखी है वहाँ पे graphics.h, इसलिए क्लोज करना है, और रिटर्न 0 लिखना है क्योंकि हमने इंट मेन लिखा है, अगर वाइड मेन लिखा होता तो रिटर्न 0 हम नहीं करते थे। ओके, सो आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे
एंटर द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1, क्योंकि हमने प्रिंट एफ में वैसे ही लिखा है, तो x1 की वैल्यू इज 100 डाली है एंड y1 की वैल्यू 200 डाली है. ओके, देन एंटर करना है आपको, एंटर द वैल्यू ऑफ x2 एंड y2. 200 मैंने x2 के लिए डाला है एंड y2 के लिए क्या डाला है, 400 डाला है. तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक लाइन क्या हो जाएगी आपकी, ड्रॉ हो जाएगी. सो इस प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने सिर्फ DDA एल्गोरिदम देखा है. ब्रेसन हम एल्गोरिदम हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखेंगे. अभी क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर, तो वर्किंग आ सकती है और एक्सप्लेनेशन आ सकता है DDA का. एल्गोरिदम एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है और लिखने के लिए आ सकता है एल्गोरिदम. उसके बाद एक सम आ सकता है DDA के ऊपर सॉल्व करने के लिए, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में सॉल्व किया है. एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी अब तक पूछे गए हैं DDA के लिए. ओके, एंड इवन प्रोग्राम भी लिखने के लिए आ सकता है. इवन यू हैव टू डू द प्रोग्राम फॉर प्रैक्टिकल. ओके, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रोग्राम जो लिखा है वो भी प्रैक्टिस करके देखना है और कंपलसरी सम सॉल्व करके देखना है, नहीं तो वो नहीं आएगा. बाजू में आप एल्गोरिदम लिखो और खुद से प्रॉब्लम क्या करो, सॉल्व करो. ओके, थैंक यू.